नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब हम आपके नेक्स्ट मेजर लैंडफॉर्म पर आते हैं एंड दैट इज योर प्लेन्स. ओके, so plains are large stretches of flat land. Now what are plains? Plains वर्ड सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि कोई प्लेन स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, राइट? सो प्लेन्स जो हैं दीज आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ द फ्लैट लैंड. दैट मींस बहुत ह्यूज एरिया तक ये स्प्रेड होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फ्लैट लैंड्स होते हैं. दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 meters above the mean sea level. So sea level से ज्यादा ऊंचे नहीं होंगे. Some plains are extremely leveled. There are some plains जो बहुत ज्यादा extremely leveled होंगे. You will find that other plains might be slightly rolling and undulating. जैसा कि हम प्लेन्स नाम सुनकर के ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा, बट इट डजंट हैपन एवरी टाइम. बिकॉज आपको पता है कि जो हमारी फॉर्मेशन है, इवोल्यूशन है अर्थ का, दैट हैज नॉट टेकन प्लेस एकदम से. धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, धीरे धीरे प्रोसेसेस हुए हैं सारे, ठीक है. सो यू विल फाइंड इन सम ऑफ द एरियाज दैट द प्लेन्स आर वेरी फ्लैट, बहुत ज्यादा फ्लैट होंगे. इन सम ऑफ द एरियाज यू विल फाइंड दैट द प्लेन्स आर वेरी वेरी we can say rolling plains होंगे, ठीक है. You will find in some of the areas that the plains are undulating. Undulating मतलब बहुत ही ज्यादा irregular होंगे. I just show you the pictures of these flat lands. Flat plains कैसे होंगे, undulating plains कैसे दिखाई देंगे, so that you have a clear you know picture in your mind. ओके, सो अगर हम फ्लैट प्लेन्स की बात करते हैं जो कि बिल्कुल लेवल्ड होंगे, सो I just show you the plain regions which are completely flat. See this picture. So इस picture में आप देखें, these are the plains. ये आपके plain regions हैं and you can see that these are completely flat. बिल्कुल आपको flat दिखाई दे रहे होंगे, right? So ये क्या हो गया, आपके flat plains हो गए. ये plains बिल्कुल leveled हैं, undulated नहीं है. Okay, these are completely your flat plains. Now, if we talk about the rolling plains, तो rolling plains जो है वो आपको इतना ज्यादा flat नहीं मिलेंगे. You will not find them so flat. Okay, you will find that they are rolling. थोड़ा सा rolled होंगे वो. See this. Can you see these rolls? That is why it is called as the rolling plains. इनको बोला जाता है rolling plains. है ये plains ही, but they are not leveled or they are not flat. Rather, you see that they are rolled. ठीक है, these are called as the rolling plains. Okay, then one more is there, that is your undulating. So undulating is very very irregular, बहुत ज्यादा irregular होते हैं. दो दे आर प्लेन्स ही होते हैं वो भी, लेकिन प्लेन्स वर्ड से आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हुए कि प्लेन का मीनिंग हो गया बिल्कुल फ्लैट सरफेस होगा. नो, एट टाइम्स यू विल फाइंड दोस प्लेन रीजन्स as very rolling or undulating too. See, these are undulating. ये क्या है आपके, undulating है. All right. Okay. Others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by the rivers and their tributaries. Now what happens, आप देखते हैं कि ज्यादातर ये जो आपको प्लेन्स दिखाई देते हैं ये किनके द्वारा बनाए जाते हैं, ये रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं. रिवर्स के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है, रिवर्स प्लस उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से. नाउ ये प्रोसेस कैसा होता है, प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, उस प्रोसेस को अभी हम समझेंगे. See, the rivers flow down the slope of mountains and erode them. They carry forward the eroded material. ये process हमने आपको in the previous lecture also I explained you this complete process, how this happened. Okay, so what happens that the river flows down the slopes of the mountains and erode them. In the last lecture also I explained you that rivers जो है वो आपके mountains से आती है. They're coming from a very very great height, बहुत height से आती है. And you also know that mountains पर यहाँ पर आपके snow है. These are the snow covered mountains. So जब ये snow melt होना start होती है तो ये river नीचे आएगी. River will be coming down. So when the river comes down from a mountain, जब river नीचे आती है तो वो इस mountain surface को क्या करेगी, erode करेगी.
If you remember in the previous lecture, we did it as external process. हमने external process के अंदर ये पूरा आपको explain करा गया है, ये पूरा डायग्राम मैंने आपको उसमें explain करा है external process में किस तरीके से water as a agent work करता है और वो landforms को erode करने का काम करेगा. So what happens that when a river is coming down from a mountain, वो mountain की surface को क्या करेगी, धीरे धीरे erode करती जाएगी, उसको reduce करती जाती है. ठीक है, सो वो अपने साथ में क्या करती है, यहाँ पर जितने भी पेबल्स होते हैं, सॉल्ट सैंड होता है, सिल्ट होता है, वो सारा का सारा वो रिवर अपने साथ में कैरी करती है. एंड अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो रिवर एक डिप्रेशन में जाकर के ये सारा का सारा मटेरियल डिपॉजिट कर देती है. आई एक्सप्लेन्ड यू दिस कंप्लीट प्रोसेस, राइट. सो द रिवर विल बी डिपॉजिटिंग एवरीथिंग. यहाँ पर रिवर जो है पूरा डिपॉजिट कर देती है. ऑल्सो आई टोल्ड यू, जब ये डिप्रेशन, ये जो सिंक है यहाँ पर, जब रिवर इतने लंबे समय तक यहाँ पर सब चीजें डिपॉजिट करती जाएगी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये पूरा डिप्रेशन जो है, जो सिंक क्रिएट हुआ है, ये आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा. और जब ये आपका सिंक या डिप्रेशन पूरा फिल हो जाता है टॉप तक, तो ये वापस से सरफेस जो है देखो पूरी लेवल्ड हो जाएगी. दिस सरफेस विल बिकम लेवल्ड एंड ये पूरा जो रीजन होगा, दिस कंप्लीट रीजन विल बी called as your plain region. क्योंकि अब क्या है, ये leveled हो गया है. It is plain region, इसको plains बोला जाता है. These are very very fertile because river यहाँ पर बिल्कुल अपने साथ में fresh material लेकर के आती है. Every time the river is coming from upwards, वो अपने साथ में बिल्कुल नया material लेकर के आएगी, फिर इस रीजन में ला करके उस मटेरियल को सेटल डाउन कर देगी. सो दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रीजन होता है. ठीक है, so this process I explained you in the previous lecture part also. If you have listened that lecture very carefully, you won't be finding this hard. इतना आपको hard नहीं लगेगा, difficult नहीं लगेगा ये समझने में. So what happens, the rivers flow down the slopes of the mountains and erode them. They carry forward the eroded material. तो जितना भी eroded material होता है, river उसे अपने साथ में carry करती है. Then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their course and in their valleys. फिर क्या होता है, जो रिवर अपने साथ में मटेरियल लेकर के आती है, उस मटेरियल को वो क्या करेगी, डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है. सो इफ यू कैन रिकॉल इट, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सटर्नल प्रोसेस. ये क्या है, ये आपका एक्सटर्नल प्रोसेस है. whereby in external process we studied about two things, erosion and deposition, the process of erosion and the process of deposition. So अब क्या कर रही है रिवर, नाउ द रिवर इज डिपॉजिटिंग द लोडेड मटेरियल, जो भी वो अपने साथ में मटेरियल लेकर के आई है, उस मटेरियल को ये पूरा डिपॉजिट करती है. एंड दैट मटेरियल मे कंसिस्ट ऑफ स्टोन, सैंड, सिल्ट along their course and in their valleys. तो जैसे जैसे रिवर नीचे आती जाती है लोअर कोर्स के अंदर, उसका स्पीड जो होता है वो कम होता जाता है. अब वो क्या करेगी, धीरे धीरे सारा जो मटेरियल लाई है उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है. It is from these deposits that the plains are formed. और इन्हीं deposits के कारण plains की formation होती है. Okay, so these are the deposits जहां पर आप देखते हैं कि slowly and gradually जब deposits settle down होने लगते हैं तो आगे plains की formation हो जाती है. Okay, generally plains are very very fertile. Generally अगर आप देखें तो plains जो है वो बहुत ही ज्यादा fertile होते हैं. Construction of the transport network is also very easy because ये flat surface है, leveled surface होता है, तो यहाँ पर transportation construct करना, रेलवे लाइंस को सेटअप करना बहुत इजी होता है. अदरवाइज अगर हम इसको माउंटेनियस रीजन से कंपेयर करें तो वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इज डिफिकल्ट बिकॉज द रीजन इज वेरी वेरी रग्ड. माउंटेन्स का जो टेरेन होता है वो बहुत ही ज्यादा रग्ड टेरेन होता है, बहुत इरेग्युलर होता है, तो वहां पर आप रेलवे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, रेलवे लाइंस को आप सेटअप नहीं कर सकते हैं, रोड्स नहीं बना सकते हैं, बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट. वहां कंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट. Not only if we talk about for the setup of the railways, also roads construct करना भी वहां difficult होता है. ठीक है, so therefore we see that these plains are very thickly populated regions of the world. ये जो plains हैं ये बहुत ज्यादा thickly populated regions होते हैं. You will find maximum people living in these areas because ये इतना fertile region है that यहाँ पर कंट्री की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करी जाती हैं. ठीक है, यहीं पर ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करी जाएंगी बिकॉज रिवर यहाँ पर अपना मटेरियल लेकर के आती है. दैट मटेरियल इज सो फर्टाइल दैट इट मेक्स द सॉइल वेरी रिच.
वो उस पूरे रीजन की सॉइल को इतना रिच बना देता है. And you know that for the cultivation of the crops for agricultural activity you need a very rich soil जो कि बहुत ज्यादा fertile हो, because irrigation facilities are needed. Irrigation facilities की need होती ही है. Some of the largest plains are made by the rivers are found in Asia and North America. ठीक है, सो एशिया नॉर्थ अमेरिका में ऐसी काफी सारी रिवर्स हैं जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्लेन्स बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल इन एशिया these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra river in India and Ganges river in China. इंडिया के अंदर आपके पास में तीन मेजर रिवर सिस्टम्स हैं. देयर आर थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री, दैट इज इंडिया. वन इज योर इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा आपका आता है गंगा रिवर सिस्टम, and one more is your Brahmaputra river system. So these are the three major river systems that exist in our country. Now what happens? ठीक है, सो अब आपकी जो गंगा रिवर सिस्टम है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, दीज आर वेरी ह्यूज रिवर सिस्टम्स, बहुत बड़े रिवर सिस्टम्स हैं. तो ये क्या है, अपने साथ में माउंटेनियस एरिया से सैंड, सिल्ट, पेबल्स वगैरह लेकर के आती है और ला करके ये प्लेन रीजन्स में, प्लेन एरियाज में डिपॉजिट कर देती है. इफ यू चेक आउट दिस डायग्राम, यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम देखते हैं, सो यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस इज योर गंगा रिवर. यहाँ पर देखो ये आपकी गंगा रिवर है and see the course of the Ganga river. So the course of the Ganga river is so long. इसके आसपास का जितना भी रीजन होगा वो सारा का सारा गंगा रिवर की वजह से बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन होगा. दैट इज वाई ये जो है ये पूरे के पूरे आपके प्लेन रीजन्स कहलाते हैं इंडिया के. इनको बोला जाता है नदन प्लेन्स. नदन प्लेन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये नॉर्थ डायरेक्शन में आते हैं, इसलिए इसको नदन प्लेन्स बोला जाता है. नॉट ओनली दिस, बट अगर आप यहाँ देख सकते हैं, सो दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर. ये आपकी पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर है. दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर. ये पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर है. ठीक है, सो दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर. सो इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग द यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर भी ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है. ऑल्सो इन चाइना आपके पास में एक रिवर है जिसका नाम है यांगटीज रिवर, एंड दैट रिवर इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग. वो भी उसके आसपास के जितने रीजन हैं उनको इतना फर्टाइल कर देती है कि वहां पर भी आपको प्लेन्स मिलते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट these are the plain regions of our country. यहाँ पर आपको plains मिलेंगे. ओके, ये मैप आपको नेक्स्ट चैप्टर में और क्लियर होगा जब हम आपके फिजिकल फीचर्स की स्टडी करेंगे. बिकॉज यहाँ देखो, यहाँ पर जो है आपकी हिमालय माउंटेन रेंज है, ये पूरी आपकी हिमालय माउंटेन्स है और यहीं से रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है. बिकॉज रिवर्स का सोर्स ऑफ ओरिजिन इज माउंटेन्स. ठीक है, तो गंगा रिवर देखो यहीं से ओरिजिनेट होके आती है, माउंटेन से. ऑल्सो अगर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर, सो ब्रह्मपुत्र रिवर भी आप देखो उसका ओरिजिन यहीं से है, माउंटेनियस रीजन से ही है. ठीक है, सो दैट इज वाई आप देखते हैं कि रिवर जो है वो एक माउंटेनियस रीजन से निकलती है, एंड जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है वो अपने साथ में बहुत मटेरियल लेकर के आती है. उस मटेरियल को रिवर ला करके डिपॉजिट कर देती है प्लेन रीजन्स में, क्योंकि नाउ द रिवर इज कमिंग डाउन. तो जब रिवर नीचे आ गई है तो उसका जो स्पीड है वो भी लोअर डाउन हो जाता है, एंड अल्टीमेटली रिवर यहाँ पर आप देखेंगे पूरे इस पूरे एरिया में रिवर्स मटेरियल डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो आपका रीजन है ये फर्टाइल रीजन होता है और इसे कंट्री के नदन प्लेन्स के नाम से जाना जाता है. इसको बोला जाता है नदन प्लेन्स. वी कॉल इट एज नदन प्लेन्स. ऑल राइट, plains are the most useful areas for human habitation. Now see, this paragraph is now telling you about the importance of the plains. Plains की क्या importance है या plains का क्या uses होते हैं. ठीक है, so in this we'll be talking about the uses of the plains. What are the uses of the plain? So plains are the most useful areas for human habitation. Plain regions जो होते हैं वो human habitation के लिए बहुत useful areas होते हैं. There is a great concentration of people as more flat land is available for rebuilding the houses as well as for cultivation. See what happens, क्योंकि ये plain regions है तो यहाँ पर easily construction भी करा जा सकता है. ठीक है, so you will find that this land is available for building houses. यहाँ पर cultivation activities भी करी जाती हैं, and that is why ये जो पूरे regions है you will find here the maximum concentration of the population. यहाँ पर आपको बहुत सारी population भी देखने को मिलती है. See this, these are the plain regions. You can see people working. Okay,
Because of the fertile soil, the land is highly productive for cultivation. In India too, the Indo-Gangetic plains are the most densely populated regions of the country. So I just showed you the diagram. अभी अभी मैंने आपको Indo-Gangetic plains का diagram दिखाया है. Indo-Gangetic plains are also known as the Northern plains. ठीक है? So right now I just showed you the diagram of the Northern plains. आपको Northern plains का पूरा diagram दिखाया गया है. So ये जो आपके Northern plains है यहाँ पर, ठीक है, इन नदर्न प्लेन्स को ही क्या बोला जाता है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स भी बोला जाता है. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स एंड दीज आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री. और ये दुनिया के सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं. क्लियर? Okay, so with this we have finished your plains also, we have finished your plateaus also, and we are done your mountains also. और हमने आपका mountains का topic भी complete कर लिया है. ठीक है? So till here I hope that it is clear to you. Whatever we have done, whatever we started today, whatever I taught you, it is clear to you. We just have a very quick revision to all the topics that we have covered today. आज जो भी हमने cover करा है उसको वापस एक बार quickly revise करते हैं. We just go through the chapter again, what all things we have talked about in the last lecture and in today's lecture as well. Okay, so see, let's start with it and we may discuss from the notes that I have with me. So these are the notes that I have created for you. Okay, so we'll discuss it from here also. All right. The surface of the earth is not the same everywhere. The earth has infinite variety of the landforms, and you see that some part of the lithosphere may be rugged and some part may be flat. Okay, so we understood this, that हमारा जो earth surface है वो flat नहीं हो सकता है. It cannot be same everywhere also. Okay, and therefore we see that a lot of variation is seen. बहुत सारे हमें variations देखने को मिलते हैं. और ये जितने भी लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं अर्थ सरफेस पर, ये सारे के सारे लैंडफॉर्म्स दो प्रोसेसेस की वजह से दिखाई देते हैं. ये कौन से दो प्रोसेस हैं? दीज आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस. वन इज योर इंटरनल प्रोसेस, सेकंड इज योर एक्सटर्नल प्रोसेस. ठीक है, एक होता है इंटरनल प्रोसेस, एक होता है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस में हम देखते हैं कि दो रिजल्ट निकल के आते हैं, एक अपलिफ्टमेंट और दूसरा होता है सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है, एट टाइम्स यू विल सी बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रोसेस अपलिफ्टमेंट माइट टेक और सिंकिंग भी हो सकती है. एक्सटर्नल प्रोसेस की अगर बात करें, so external process में we see that continuous wearing down and rebuilding of the land surface. External processes external agents की help से होते हैं, like we have water, we have air, we have wind, okay, sunlight. Because of this जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं उनका रीस्ट्रक्चरिंग होता रहता है. ओके, सो कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज two important processes in the external process. So external process की जब हम बात करते हैं तो हमने external process में आपकी erosion की बात करी और deposition की बात करी थी. इरोजन का मतलब मैंने आपको समझाया किस तरीके से रिवर जब कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म से फॉल करेगी तो वो उसके पोर्शन को इरोड करती जाती है एंड अल्टीमेटली वो जो भी अपने साथ में कैरी करती है मटेरियल, वो सारा का सारा मटेरियल वो क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी. सो दैट इज योर प्रोसेस ऑफ डिपॉजिशन. ठीक है, देन वी ऑल्सो सॉ दैट बेस्ड ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप लैंडफॉर्म्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटोज. हम इसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटोज. देन वी टॉक्ड अबाउट माउंटेन्स इन डिटेल्स. हमने माउंटेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा. नेचुरल फीचर्स होते हैं, एलिवेटेड फीचर्स होते हैं. यहाँ पर आपको ग्लेशियर्स की प्रेजेंस भी मिलती है. ग्लेशियर्स आर बेसिकली दी फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. फ्रोजन रिवर्स होती हैं. बहुत कम लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज माउंटेनियस रीजन्स कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्श होती है एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव. यहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं. ठीक है, देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. हमने आपके टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करा. वी टॉक्ड अबाउट द फोल्ड माउंटेन, वी टॉक्ड अबाउट ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करा था. ठीक है, देन
We moved ahead discussing today about plateaus. आज हमने plateaus के बारे में discuss करा, whereby we saw that plateaus आपके tableland elevated features होते हैं, और जो टॉप होता है प्लेटोस का वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट सा दिखाई देगा, और जो स्लोप्स होंगे वो काफी स्टीप स्लोप्स होते हैं. दैट इज योर प्लेटोस. प्लेटोस भी माउंटेन्स की तरह यंग हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं. ठीक है. फेमस ओल्डेस्ट प्लेटो इज योर डेक्कन प्लेटो, जो कि आपका इंडिया में है. डेक्कन प्लेटो रीजन है ये पूरा का पूरा, जो हमारा सदर्न पोर्शन है यहाँ से, दिस इज योर डेक्कन प्लेटो रीजन. हाईएस्ट प्लेटो कौन सा है? दैट इज योर तिब्बतन प्लेटो. Some of the other examples that we talked about, you can see Kenya, Tanzania, Uganda, Western Plateaus of Australia. Okay, then we talked about today your plains. आज हमने plains के बारे में भी discuss करा. Plains आपके large stretch होते हैं flat land के. Plains are generally not more than 200 meters above the mean sea levels. Some of the plains are extremely leveled and others may be slightly rolling and undulating. ठीक है. तो कुछ प्लेन्स आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा फ्लैट होंगे, कुछ प्लेन्स आप देखेंगे रोलिंग होते हैं, कुछ प्लेन्स अनड्यूलेटिंग होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स पूरी आपको समझाएंगे किस तरीके से प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है. रिवर ऊपर से अपने साथ में जो भी मटेरियल लेकर के आती है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको डिपॉजिट करती जाती है, एंड देयरफॉर आपके प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है. प्लेन्स की इंपॉर्टेंस देखी हमने, प्लेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है. These are the areas where you will find maximum people living over here. Maximum concentration of the population lives over here. When we looked at some of the examples, Ganga Plain, Brahmaputra Plain, Yangtze Plains, हमने इनके examples भी देखे. All right. So I hope that till here it is clear to you and you are able to understand whatever we have covered. Please do listen the lectures carefully. You will be able to understand. This chapter is a little bit easier for you. आपको अगर यहीं पर ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं सारे, तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया, दैट विल बी इजी इन अंडरस्टैंडिंग. आपको इजी हो जाएगा याद करने में. ओके. सो राइट नाउ इन दिस चैप्टर, एज आई एम टेलिंग यू, अभी हम इसको सिर्फ एक जनरलाइज्ड मैनर में पढ़ रहे हैं. ऑल ओवर द अलग अलग हम कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. एशियन कॉन्टिनेंट्स में आपको कौन से माउंटेन्स दिखते हैं, यूरोप में आपको कौन से माउंटेन्स दिखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका. ठीक है. सो एवरी कॉन्टिनेंट, इन एवरी कॉन्टिनेंट यू आर फाइंडिंग माउंटेन्स, यू आर फाइंडिंग दीज लैंडफॉर्म्स. बट further, if you will further when we'll be studying specifically for our country, we will be locating all these landforms in our country as well, so that you will be able to understand all these landforms clearly. आप जब अपनी कंट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, इंडिया कंट्री का, सो तब आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज लेक्चर. आज का हम लेक्चर हमारा यहीं फिनिश करते हैं. प्लीज डू रीड ऑल दीज थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली. दिस विल हेल्प यू एवरी टाइम. व्हाटएवर आई एम शोइंग यू इन पॉइंट्स को आप साथ साथ नोट करते जाएं. गुड डे एवरीवन. थैंक यू.